Hello and welcome to Classes by Vijeta. Today's topic is rural environment, the environmental factors that affect rural marketing or rural business. So before starting, I'd request everyone, if you like the content, please like my video and share it with your friends. And if you have not subscribed to date, please do subscribe to my channel. So what is environment or environmental factors for any business? Anything which affects a business, anything which affects business activity is called environmental factors. The external environmental factors or the uncontrollable environmental factors have a major impact on business, and what we are going to deal in this video is the environmental factors or the uncontrollable environmental factors of rural marketing. रूरल मार्केटिंग में जितने भी environmental factors होते हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो मैक्रो हैं और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्चुअली हम उसके बारे में बात करते हैं environmental factors में. अदरवाइज इंटरनल कंट्रोलेबल मार्केटिंग फैक्टर्स, वो चाहे रूरल बिजनेस हो, अर्बन बिजनेस हो, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग हो, सबके लिए नियर अबाउट सेम होता है. बट जैसे ही आप बिजनेस का स्फेयर बदलते हैं वैसे ही उसके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स बदल जाते हैं. तो विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट rural marketing or any rural business. If someone is planning to launch their business in any rural area or any rural market, what are the things that affect business? So what are the environmental factors? Broadly, the demographic environment, the physical environment of that particular rural place, the socio-cultural environment of that area, the political environment of that area, the technological environment or technological advancement the people are having, and the rural economic environment. So these are the environmental factors that will affect your business when you plan to start any business activity in any rural area. So we'll deal one by one. What is demographic factor in any rural market or any rural area? Demographic factor are basically the population. Demography is basically the study of population, the population residing in that particular area. So when we talk about rural marketing, it is basically when we talk about demographic factor that affect rural business is the growth of the rural population, the changes in the rural family structure, the age, the education, their occupation, their land ownership. So when we talk about growth in rural population, ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक रूरल प्लेस में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. बहुत कहीं हो सकता है कि पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज कर रही है, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए होते हैं उस जगह से, तो वहां माइग्रेशन ज्यादा हो रही है, या उस एक पर्टिकुलर रूरल एरिया का अगर वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे जो रिसोर्सेज है उनकी इंक्रीमेंट हो रही है, तभी लोग बहुत ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं या फिर वहां पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है. तो वन हैज टू टेक look after everything why population structure is changing in particular area. What is the rural family structure of that particular area? वहां joint family होती है, nucleus family होती है, या फिर फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लोग एक फैमिली एक यूनिट की तरह कैसे रहते हैं, वो पर्टिकुलरली आपको डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में देखने की जरूरत होती है. उस पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी आप रूरल मार्केटिंग अपने बिजनेस को लेकर जाने वाले हैं, वहां का जो पॉपुलेशन है उसका एज, एवरेज एज ब्रैकेट क्या है, एजुकेशन का क्या लेवल है, ऑक्यूपेशन अभी भी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व है, तो किस तरह के एग्रीकल्चर में देयर आर सो मेनी फील्ड्स, तो किस चीज की एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो, किस पे उनका ऑक्यूपेशन क्या है, किस पे उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, ये सब देखना पड़ता है. एंड लैंड ओनरशिप का क्या पैटर्न है. कोई एक सिंगल बंदा है जो सारे लैंड को ओन करता है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बाकी जितने भी लोग होंगे वो बहुत मेयर्स कंडीशन में होंगे, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत पुअर हो सकता है. वो ऐसा हो सकता है कि अभी भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही हो, बंधुआ मजदूरी चल रही हो. तो लैंड ओनरशिप का पैटर्न क्या है, या एवरीवन इज हैविंग देयर ओन लैंड, everyone is growing and everyone is rich. You need to see when you go for rural marketing any rural place, land ownership का पैटर्न देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में. उसके बाद वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट इज बेसिकली द सेटलमेंट.
सेटलमेंट कैसा है, कैसे रहते हैं, मतलब स्कैटर्ड रहते हैं या क्लस्टर्ड रहते हैं, एक ही जगह बहुत सारे गांव। जैसे आप मान लीजिए कि किसी पहाड़ी एरिया को देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं, कोई प्लेट्यू है या फिर कोई माउंटेन वाला प्लेस है, वहां पे जो रूरल एरिया है, वहां जहाँ पे भी थोड़ा सा जो लैंड का पैटर्न है वो थोड़ा लेवल्ड होता है, एक लेवल में होता है, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक साथ में उन्होंने अपने घर को बना लिया और एक जगह रह रहे हैं। फिर कुछ देर दूर का एरिया काफी ज्यादा वेकेंट हो सकता है, उसके बाद फिर आपको वो पॉपुलेशन, तो डेंसिटी जो होती है, घरों की डेंसिटी बेसिकली, वो क्लस्टर्ड हो सकती है, स्कैटर्ड हो सकती है या फिर ग्रुप्ड हो सकती है। तो किस तरह का लैंड सेटलमेंट, किस तरह का हाउसिंग सेटलमेंट है, हाउसिंग का क्या पैटर्न है, रूरल हाउसिंग पैटर्न कैसा है, ये भी फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और इससे आप जब अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लान करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत स्कैटर्ड लोग रहते हैं, बहुत दूरी दूरी पे रहते हैं, तो आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च बहुत ज्यादा जाता है उस केस में। और अगर लोग क्लस्टर्ड रहते हैं या एक जगह ग्रुप करके रहते हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो सकता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट हैज टू बी चेक्ड। उसके बाद बात आती है सोशियो कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी को प्लान आउट करने से पहले सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को चेक करना बहुत जरूरी होता है, और रूरल में भी ऐसा करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रूरल प्लेसेस या रूरल मार्केट्स बेसिकली जो उनका बेस होता है वो कम्युनिटी पे बेस्ड होता है, और वो कम्युनिटी हमेशा सोशियो कल्चरल सिमिलैरिटी के बेसिस पे वो कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। वहां पे कोई इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि हमारी नौकरी लग गई है वहां पर और हमें जाना है, फिर आसपास हमारा जहाँ पे काम है हमने देखा वो उस जगह को और हमने वही पास में घर ले लिया और फिर हम वहां रहने लगे। नो, रूरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो कम्युनिटी होती है वो उनका वो अपना घर है, वो वहां पे रहते हैं, और बेसिकली सोशियो कल्चरल रिलेशनशिप्स की वजह से ही वो कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। तो सोशियो कल्चरल रीजन्स आपको देखना है, विलेज का कम्युनिटी देखना है, कास्ट सिस्टम देखना है। ये सोशियो कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कास्ट सिस्टम, विलेज का पैटर्न कैसा है, लोग कैसे कम्युनिटी फॉर्मेशन करते हैं, उसके हिसाब से आपको आपको प्रोडक्ट्स लाना पड़ेगा ताकि वहां के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे। साथ में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली जो रूरल एरियाज में होंगे वो आप सीधा सीधा नहीं कह सकते कि एकदम डायरेक्ट गवर्नमेंट का इम्पैक्ट होता है। दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हर गांव में अपने अपनी ग्राम सभा होती है, मुखिया होते हैं, और उनके हिसाब से बहुत बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है वहां पे होता है। बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि जो किसी एक पर्टिकुलर गांव, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो रूरल, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको मुखिया का सपोर्ट चाहिए, वो वहां पे काम करवा रहा है नहीं करवा रहा। अगर जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट करेगा तो ऑब्वियसली वहां के लोगों का लाइवलीहुड इंक्रीज करेगा, वहां का लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वहां के जो मुखिया हैं या फिर जो वहां पे पंच है, ग्राम सभा है, इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वहां पे जो लाइफस्टाइल होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं होगा, कोई सिविल सोसाइटी ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहां पे। तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वहां के मुखिया का क्या पैटर्न है, क्या उनका इंटेंशन है कि वो गांव का अपना फायदा चाहते भी है या नहीं चाहते, या सिर्फ वही वो सबको नीचे दबा करके और फिर अपने आप को सिर्फ हमेशा मुखिया बना के रखना चाहते हैं, या एक्चुअली दे आर वर्किंग, दे आर ट्राइंग टू सर्व द सोसाइटी। तो यू नीड टू चेक बिफोर एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर मार्केट वहां के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वहां का पंचायत, वहां का ग्राम सभा होता है। एंड द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बेसिकली हम एग्रीकल्चर के केस में कितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है ये देखते हैं। जैसे कि इसी आप इस पीपीटी में ही देखेंगे, एक साइट की इमेज देखिए, वहां पे जो मशीन्स लगी हुई हैं, ये जो मशीन्स लगी हुई हैं, ये मशीन्स बहुत जगह इंडिया में बहुत अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी वो बैल का इस्तेमाल करते हैं, वो हाथ वाले एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं देखते। लेकिन पंजाब के गांव आप चले जाइए और बहुत सारे जैसे रायपुर वगैरह में जाइए, दे हैव टेक्नोलॉजिकली एडवांस। तो वहां पे जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है, दे हैव चेंज, वहां पे मशीन्स को डिप्लॉय करा है, और मशीन्स को डिप्लॉय करने के बाद उनकी जो एग्रीकल्चर, उनकी जो खेती है, पैदावार है, वो काफी बढ़ गई है, और उनका
जो लाइवलीहुड है वो उसके थ्रू, या फिर उनका जो आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल हैज इंक्रीज्ड। तो मैकेनाइजेशन कितना है, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उस एरिया में, उतना ही ज्यादा एज अ मार्केटर आपको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना वहां पे ज्यादा इजी हो जाएगा। प्लस क्योंकि बिकॉज लोगों के पास सरप्लस होने लगता है उस केस में, और सरप्लस होता है तभी लोग अपनी नीड्स से वांट की तरफ मूव करते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, जो कि अभी बहुत ज्यादा है इंडिया में, कहते हैं इंडिया में more than 56% of people are having mobile phone with internet connectivity and 73% of people are having mobile phones. So जो कि चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ काफी ज्यादा फैली हुई है। मे भी हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, लेकिन फोन सबके पास है, यूट्यूब में गाना सुनना सबको आता है जिसके पास भी मोबाइल है। तो वो यूट्यूब में गाने सुनते सुनते आपको अपना कम्युनिकेशन पहुंचाना भी उसके पास बहुत ईजी है। आप वहां पे इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट या फिर आप किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट प्लान कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर बहुत दूर तक नहीं पहुंची है, वहां पे पेनिट्रेट करना, उस मार्केट में पेनिट्रेट करना विल बी डिफिकल्ट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इज one of the factor that will affect your business. And the last one is the rural economic environment. रूरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको देखना है जब भी आप किसी रूरल मार्केट में जाते हैं, बिकॉज क्या है कि वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग इज पीपल डोंट हैव रिच पॉकेट्स इन रूरल एरियाज। वहाँ स्कार्सिटी होती है, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, इनकम की, बिकॉज वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो बहुत सोच समझ करके वो भी एग्रीकल्चर, अगर भगवान भरोसे चल रहा है तो आपका भी बिजनेस भगवान भरोसे हो सकता है। ट्रांजिशन आपको देखने की जरूरत है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ट्रांजिशन इन दैट पर्टिकुलर रूरल इकोनॉमी। लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं वहां पे, लोग इकोनॉमी के लिए, अपनी इनकम के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से इंडस्ट्रीज जो फार्म सेक्टर या नॉन फार्म सेक्टर में क्या क्या ट्रांजिशन उस पर्टिकुलर एरिया में हो रहे हैं, वो देखना जरूरी है। जो रूरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे आपको जो बताया कि फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज वो क्या कर रहे हैं, और नॉन फार्म सेक्टर जैसे ईटा भट्टी होती है, या फिर सब्जियां लगाने वाली हो गई चीजें, या फिर आप एनीथिंग रिलेटेड टू, जैसे मनरेगा, वो कोई डोभा बना रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई स्कीम आ रहा है उस पर कुछ काम करे, या कोई कॉटेज इंडस्ट्री है विच इज नॉट एग्जैक्टली फार्म बट उसके प्रोडक्ट को लेकर के बना रहे हैं, तसर का काम करते हैं, या फिर सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं, या डलिया बनाते हैं, या बहुत सारी एक्टिविटीज है जो रूरल मार्केट में होती है। तो नॉन फार्म सेक्टर या रूरल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल अलाइड इंडस्ट्री, ये इसका क्या स्ट्रक्चर है, किस हिसाब से वो प्रोड्यूस बनाते हैं, कैसे उसको सेल आउट करते हैं, कैसे उसके इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके बायर वहां पे होंगे या नहीं होंगे। तो रूरल एंटरप्राइजेस, वहां पे किस तरह के रूरल एंटरप्राइजेस है, किस तरह के बिजनेसेस है जो कैरी आउट होते हैं, दैट हैज टू बी चेक्ड। आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि जैसे अगर आप किसी रूरल एरिया में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारी चिट फंड कंपनीज आपको दिखेंगी जो कि काम करती है। एमएलएम कंपनीज का गढ़ होता है इंडिया में रूरल मार्केट। रूरल एंटरप्राइजेस वहां बहुत ज्यादा चलते हैं, बिकॉज क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो है, बट उसका प्रॉपर इस्तेमाल, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू वेरीफाई समथिंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। द ओनली थिंग द पीपल आर एंगेज्ड इनटू कि मुझे कहीं से भी मुझे कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, या फिर ऐसी एंटरप्राइजिंग जिसमें वो बहुत ज्यादा फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं होते, बिकॉज उनका एग्रीकल्चर उनका मेन काम है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एमएलएम चिट फंड कंपनीज काफी ज्यादा रूरल पॉपुलेशन में काम करती है, और बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी आप देखेंगे जो रूरल एंटरप्राइजेस में काम करती है, और बहुत सारी बार फ्रॉड वगैरह के केसेस भी सामने आते हैं। तो व्हाट इज द रूरल एंटरप्राइजेस, व्हाट आर द रूरल एंटरप्राइजेस वर्किंग दैट पर्टिकुलर एरिया, what is the income disparity, income का distribution कैसा है वहां पे, and what is the rural spending, रूरल स्पेंडिंग कैसे करते हैं लोग, अपने पैसे को खर्च कैसे करते हैं, कहाँ खर्च करना चाहते हैं, अगर उनके पास अभी कोई खर्च करने का एवेन्यू है या नहीं, अगर है तो उसको कैसे करते हैं, अगर नहीं है तो वो किस पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, that has to be looked. And these are the factors that will affect your business whenever you are planning to launch any business into a rural market. So this is all about
rural environment or rural external environment or rural marketing environment, anything and any sawal sujhav you have, any comment you have, you can write to me at vijayata.rwc.com or comment in the comment box. I'll be more than happy to answer any of the queries. So thank you very much. Thanks for listening, and please do subscribe. Thank you.